Nagpur because there have been protests coming in early this morning. Ugly demolish Aurangzeb tomb protest. 60-65 rioters taken into custody for riots. 25 to 30 police personnel injured. In Nagpur violence, chilling eyewitness details on India Today. There's been massive deployment on the ground. However, look at the images. What was the need for this? How can the police not ensure peace in time? These are some of the visuals coming in about rioters who've been taken in custody. Communal riots have broken out in Nagpur, and why? Chilling eyewitness details coming in. Let's listen in now to some of the reactions from the ground from Nagpur. पूरी की पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे में पैक थे, उन लोग के पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार डंडे बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके, पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं, खींचते गए और पूरा मुस्लिम नारे लग रहे थे। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है ऊपर की। और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। लगभग रात के 10 बजे से यहाँ पर उपद्रवियों ने उपद्रव मचाना चालू करे थे और मेरे को यहाँ से फोन आए तो मैं यहाँ के जो पीआई है संजय सिंह उनको फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैं यहाँ के विधायक जी को फ़ोन करा और उन्होंने भी फिर बाद में यहाँ पर सिंह साहब को फ़ोन लगाया और उसके बाद में भी 1 घंटे बाद में यहाँ पर वो आए, लेकिन वो 1 घंटे के दरमियान यहाँ पर चुन कर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुँचाया गया, उनको गाड़ियाँ जलाया गया और बहुत ही गंदी बातें बोले गई। India Today's Sumi is joining me now from Nagpur this morning. Sumi, what exactly happened? What are you picking up from Nagpur? A beautiful, otherwise peaceful city breaking into communal clashes. Yes, absolutely. Nagpur has a 3-year-old history and in fact in the entire history of 300 years, no communal riots have taken place according to the locals and the politicians, and which is why now they are urging every local to maintain peace and order and to not succumb to misinformation that is doing the rounds. But before going into much details, I would also like you to show our audience the kind of visuals that are now coming to light, the kind of havoc that has unraveled in the cities of Nagpur. I am very close to Shyam Talkies, which is roughly about 2 kilometers away from Shivaji Chowk. Shivaji Chowk was the epicenter of the clashes that broke out, and in fact several groups of protesters broke into several areas of Nagpur, especially in this particular colony, and in fact they had broken everything that came their way. These four-wheelers became the victim, and in fact you can see how huge the cobblestone has been thrown on this particular four-wheeler. You're showing us this brutal aftermath. Look at that bricks. Number of bricks that have been used to literally break these vehicles, parked vehicles. What happened? What was the trigger? What was the reason that such a massive communal clash would take place? Yes, absolutely. Tensions between two groups actually gripped the entire Nagpur in communal riots. I would also like to talk to a few bystanders who were here when the clashes broke out, and they will be the best people to actually tell us what exactly happened. Sir, यहाँ पर क्या हुआ था कल रात को? किस तरह से यहाँ पर protesters हैं जो आए और क्या हुआ? ये जो गाड़ियाँ टूटी हुई हैं, ये बड़े-बड़े ईंट जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वो साफ नजर आ रहा है कि काफी तैयारी करके आए। Actually, पिछले चौक में 2 गुट आपस में घोषणाबाजी कर रहे थे। हाँ। उनको पुलिस प्रोटेक्ट कर रही थी और पुलिस का कहना था कि यहाँ से आप निकल जाओ। हाँ। जब पुलिस ने ज्यादा प्रेशर दिया, हाँ, तो वो गुट अपने अपनी गाड़ियों पे बैठ के एक बड़ा सा जत्था इस गलियों से होते हुए गुजरा। हाँ। उनके साथ में ईंटें भरी हुई बोरियां थी, लकड़ियां थी। हाँ। उन्होंने गाड़ियों को डैमेज करना शुरू किया और बड़े बड़े पत्थर मार के हाँ। गाड़ियों को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। उनका सही मंशा था कि भैया
पब्लिक का जो भी है यहाँ के लोगों का नुकसान करते हुए निकलना। निकलते निकलते उन्हें रोड के किनारे एक गाड़ी खड़ी थी, हरडे है उनका सरनेम, उनकी गाड़ी को उन्होंने अंगार लगाया। अंगार लगाते हुए यहाँ के लोकल लोगों ने भी वीडियो लिया। वो बड़े बड़े पत्थर मार के उन्होंने अंगार इस तरीके से लगाया कि शायद उनका मकान भी जल सकता था, ऊपर तक उसकी लौ उठते हुए लोगों ने देखा। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ के जो है, यहाँ के लोकल पर्सन इसमें है नहीं। लोकल पर्सन जो है आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के इसका सौहार्दपूर्ण वातावरण में स्वागत करते हैं। हम ईद मनाते, वो लोग भी रामनवमी में हमें काफी हेल्प करते। यहाँ का लोकल पर्सन ये जो भी गुट है ये बाहर से आए हुए हैं और उनका मंशा यही था कि यहाँ पब्लिक में ये करना, यहाँ तेड़ निर्माण करना, यहाँ आपस में रंजिश तैयार करना और इनके बीच में तकलीफें आ जाए। इनके बीच में जो आज अच्छा वातावरण है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, वो वातावरण को उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। सारे पुलिस वालों पर भी अटैक किया गया, 20 से ज्यादा। तो काफी पुलिस वालों को पत्थरबाजी में मारा उन्होंने और कुछ लोगों को तो इंजर्ड भी है, हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा। तो ये जो भी है ये असामाजिक तत्व है, इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका उद्देश्य एक ही होता है, पब्लिकली जो भी है उसमें एक डर पैदा करना, पब्लिक के बीच में एक रंजिश तैयार करना। तो ऐसे लोगों को इनको पुलिस ने इनकी अच्छे से ये तहकीकात करके इनको ऐसा पनिशमेंट करना चाहिए कि आगे से फिर कभी नागपुर में ऐसी वारदातें ना हो। बिल्कुल। All the CCTV footages are right now being analyzed and people are constantly being detained. That's what we are picking up from this particular area where Section 163 of the BNSS has been imposed since yesterday.